Planning as a Debt Research. Our guest of honors, Mr. Suhail Lal Sahab and Professor N.K. Dadlani. He is basically a former professor and head division of floriculture here in New Delhi, and he is basically expert in the commercial floriculture. And we have with us very important as our family member, that is Professor Allah Sahab. He is basically he started his career from this institute in 1985. Then he is the owner of a multinational company, that's Biocarb, who are suppliers of this ornamental seeds to the whole world. This is a very good contribution from that side. So we have with us Mr. Khurshid Kasba Sahab. He is the Joint Director, ex-Joint Director, Department of Floriculture, Agriculture, but working on particular floriculture sector. Then we have with us Professor Junaid Sahab. He is Estates Officer. Then we have with us Professor Zadi Rathar Sahab. He is our ex-professor and head as well as a very well-known figure in the field of floriculture. We have with us Professor Zadi Qadri Sahab. He is also a well-known figure in commercial floriculture and landscaping. And we have other guests of the faculty professor and head division of FLA. She is well known for her dynamic leadership, that is Professor Badi. And we have our very competent and dynamic head. He was heading division of floriculture earlier, that is Professor F.U. Khan sir. Sir, this is the occasion of the training program which we are organizing today. This is basically on entrepreneurship, opportunity, commercial floriculture and startups. Regarding that, sir, this is from my side. I welcome my Assalamu alaikum, Sat Sri Akal and adab to all of you. Now I request Professor Nilofar Badi to kindly formally welcome our guest. Thank you very much. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. It's a privilege and I feel honored to receive our chief guest of the occasion, Professor Naik, Professor Harun Naik Sahib, who is Director Research of this university as well as the Director Planning. I extend my gratitude and welcome, a warm welcome to my seniors in the floriculture department, the eminent scientists of the India, one Professor Dadlani and Professor Alarang. Though Alarang was our family member, he has started as Nasir Saab told you, he is our own family member. So then he went to Punjab and he started his own venture and he was working in Punjab Agriculture whatever. But basically we feel that he's our own family member. Sir, I am honored to welcome you to this 7 days training program. My warm welcome goes to Mr. Suhail Alawand, who is nodal officer of MSA in trainings in J&K, and I will fail if I will not welcome my HODs, ex-HODs, Dr. Zali Rathar, and of course Dr. T.M. Pal was also supposed to be here, but he is not here. And one of the most important floriculturists, Dr. Khurshid Kasba. Khurshid Kasba was, he is holding a degree in floriculture and landscaping. And once I went to Ludhiana for my post-graduation, he was a well-known figure there because he was the only person at that time who had designed a park for Ludhiana. And his MSc thesis, Dadlani sir, I've seen, it is a whole map only. Written में उसमें कुछ थोड़ा सा ही है, but he had devised a map of that form and then he had submitted that thesis and he is among us. And I extend my warm welcome to Professor Khurshid Kasba and to all HODs and estates officer is also here, Dr. Junaid, and Dr. Maglu is here, and our own ex-HOD, Dr. F.U. Khan, who is presently a professor also. Dr. Zadi Qadri is here. And all the participants of this event,
I am extending my warm welcome to all of you for this training program. I believe that 7 days or 10 days training program, it's not sufficient to just get the skills, but it is more than sufficient to get an idea where from you can gain and where from you can start. Because for startup, you need a roadmap. Roadmap is given in these trainings, awareness programs, whatever is being conducted by the university. So you are getting a roadmap and you are getting an idea where from to start. And if we are able to start working up, or what are the opportunities, what are the avenues and how to start these projects and where from we can get the money or we can get the help or incentives. So these training programs are devised with the intention to impart such awareness to the youth of our own state so that they can think of getting themselves into the entrepreneurships and get the idea what to do, because floriculture is not one activity enterprise. It is a multi-activity enterprise. You have so much of scope in floriculture. There are vast, this is diverse, it is cut flower, seed production, anything for that matter, pot plant production, landscaping, decoration, and just devising parks, lawns, anything for that matter. It is very diverse. So you will get in these 7 days, you will get an idea what we can do, where you can start up, especially for those who have come to learn and who have come to just get an idea for the startup. Because ultimate goal of these MSME trainings is only to that our youth should not run after the employment. They should be able to develop their own startup, start their own startup and engage other people, give employment to others, rather than running himself or herself after the employment. I think I just take this opportunity once again to welcome all the guests in this on this occasion. And before I sit, I just request my Professor F.U. Khan to formally felicitate the guests with the floor of the case. Welcome. So first, a formal welcome with floral bouquets by F.U. Khan to Dr. Naik, Director of Research to Mr. Suhail Alagban, Coordinator MSME JNK. That's it, sir. Professor Alaran, our own family member and enjoyed by all seats, managing director. Professor Dadlani, a pride floriculturist. Professor Rathal, our ex-HOD. Professor Zade Gauri, ex-professor floriculture. Khurshid Kasba, joint ex-director, joint director agriculture, Engineer Khan, estates officer of this university. Thank you, Dr. Karimullah Khan, for gracing this, and I hand over the mic to Professor Masudi. Thank you very much, ma'am, for a warm welcome to all of us. I will get this little schedule change. I request Mr. Suhail Alagban sir to come on the dais and share his view. He is basically the concerned person of MSME who can support all the startups and entrepreneurs in case of some seed capitalist concern. In the name of Allah, most gracious, most merciful, peace and blessings be on our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Respectable the chief guest of the occasion, Professor Harun Malik, Professor Alaram, Professor N.K. Dadlani, Professor Shabir Amirwani,
Professor May Siddiqui, Professor Liam Abdulmi, and Professor Niloufar, and basically the Vice Chancellor of the SCOST, since he is not present here. My whole heart congratulations to all of them, to all the team who has basically sponsored this wonderful program on commercial floriculture. Basically, I belong to the Ministry of MSME Government of India, which takes care of the startups, entrepreneurs, aspiring as well as already existing entrepreneurs, those for the development of industrial estates, those for the building of common facility centers, sponsors the new entrepreneurs through different schemes of PME, GPR, other schemes. We generally had basically those basically particular trades or those particular sectors where we generally used to get into. But now through these skill development programs and entrepreneurship skill development programs, we just try to vast our range of entrepreneurial opportunities. Before I start the proceeding, I would really like to congratulate Professor Harun Naik, especially SCOS Kashmir, for gaining 550 programs this year from MNC Ministry. This is a contribution that goes to the corners of the J&K state, that goes even to Ladakh. This is really a contribution. Last year they bagged around 66 programs, this year 550 programs. And those programs are professionally being held. Whatever I know, generally I see all these programs, most of them are covered through YouTube. So you can see at any point of time through their SCOSK live channel, YouTube channel, these programs. So this may reach many more people. Those participants who even have not joined the program, they also can benefit from it. But what is the aim of these particular programs? Is not basically we want to award you a certificate from Government of India that they have done this particular course. Our simple aim is to commercialize what you know, to make sure that you make money out of things, out of those skills, out of those technical knowledge that you have. Unfortunately, it has been seen that there are so many number of patents in universities, colleges, but they are not made commercial. If you see the difference between the patent filing in China, US and other places, once they file the patent, the patent is granted to them, they make sure that that patent gives them money. That patent is commercialized. So they issue licenses to different countries to use a particular technology or particular invention. Here, if this program on floriculture is going on, we want you to somehow start your own enterprise. I served in Mumbai for 3 years, from 2010 to 13. I used to live 100 kilometers away from Mumbai in a place called as Boisar. I used to work as a manager in General South Steel Limited in production. So what I usually used to see that it's the Mumbai-Surat belt is around 7 hours journey. Every morning, people used to come with fresh flowers and used to deliver it in Mumbai and go back in the same train in the evening. I'm sorry, my throat is not well, and my eyes are not well, that's why I'm using goggle. They used to get this work every day. Because of the amount of business they were making in money in Mumbai, every day they used to travel 7 hours, in the morning and in the evening. And I talked to those people. They said, sir, our life is in train only. But we are getting money out of those fresh flowers that we sell. This particular place is a region with rich floriculture. So if we are left not getting any commercial value out of it, we are not making our economy grow. You don't realize that nowadays the job opportunities are getting shrink day by day. But startups are starting in different domains. And the push of government is also to boost startup. हम चाहते हैं कि आप particularly जो technical issues से निकलते हैं, there are so many schemes, grants even available. Somehow those particular inventions or innovations should reach to the business community, should make business. So whatever you will learn for these 5 days, I just went through this particular program. The first thing you will get out of this advanced ASGP course is not simply knowledge, it's the exposure of the resource faculties that they will share with you. This is an additional domain where ministry is supporting lakhs of rupees for a particular program just to make sure that you get exposed to the world-class experts available. यहाँ पे आपके already world-class experts बैठे हैं
आपके डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से भी आएंगे, आप उनसे एक्सपोजर लेंगे कि what next can be done, how we can improve ourselves. It is not just you get a certificate with at the last. It is basically that somehow at the end of it, I generally want people to call me on the valedictory and invite me, and then I will take the feedback. And I want to see few people coming out as entrepreneurs. I'll just quote an example. देखिए आपके लिए और मैं अपने ऑफिस में ये कोर्स करता हूँ. I generally do the course with the community that is not well read. There is a mission that's called NRLM. NRLM के बच्चों को मैंने 10 दिन की EDP की ट्रेनिंग दी. You will not realize I couldn't give them certificate on the last validity day because of COVID. I gave them certificate after 2 years. And after 2 years, a particular girl from a village comes down to my office. So I have started my own journey. I am employing around 10 to 12 ladies, paying them 9,000 rupees a month. Still I am earning 18,000 for myself. This is when we can expect this contribution from that particular lady. When you are the technocrats, when you are well read, we want you to come up with this. आप इस दौर में रहेंगे कि हम एसिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे. आज एजुकेशन का डोमेन चेंज हो गया. Now the world needs mentors. आपके स्टूडेंट्स आपके साथ तब बैठेंगे जब आपके पास एक्सपोजर हो. अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं होगा, वो शाम को YouTube खोल के पढ़ाई कर लेगा. Make sure you develop your level to such level that you're a professor with a startup. You're a professor with an industry. उस लेवल की बेसिकली हम आपसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से एटलीस्ट ये मोटिवेशन लेते हैं कि जो इसमें स्टूडेंट्स हैं, आई होप दे आर फ्रॉम द सेम सेक्टर फ्लोरिकल्चर से ही हो कि ये 5-6 दिन के बाद इतना एक्सपोजर ले ले, दे स्टार्ट द जर्नी. एंड आई होप यू कॉल मी ऑन द वैलिडिटी एंड से यस सर वी हैव डन इट. थैंक यू फॉर दिस. Sir, I need some, sir, a few minutes of yours. In case, sir, I will request Professor Alaran Saab to, this professor is Alaran Saab to kindly interact with these students about the program they are doing, so that our Ministry of MSME representative can know how we can go ahead for development in Kashmir. Kindly, sir. Good morning. In the meantime, जब तक ये मेरी पीपीटी चालू होती है, फॉर्मल इंग्लिश लेक्चर दिए है वो बहुत साल हो गए. I retired in 2013 from PAU as head department of plant breeding. तो उसके बाद इंग्लिश बोलना कम हो गया. तो वैसे भी बात वही समझ में आती है जो अपनी जुबान में हो. तो हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इसकी. सबसे पहले तो मैं आप इस यूनिवर्सिटी में आपके पास आया था 85 में. 85 में एज ए प्रोफेसर इन प्लांट ब्रीडिंग. उसके बाद आई वाज वर्किंग एट PAU at that time and then I joined here as plant breeder. उसके बाद फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट शुरू करना था यहाँ पे. तो उस फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए मुझे प्लांट ब्रीडिंग से उठाया गया कि आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट शुरू करो. सो फॉरेस्ट्री हम लोग 4 साल तक मैं फिर फॉरेस्ट्री में था. वी स्टार्टेड डूइंग सम वर्क, ट्राई टू इंपोर्ट सम प्लस ट्रीज फ्रॉम USA और उनको यहाँ ला के ग्रो किया है. आज सुबह मैं 7 बजे से घूम रहा था, मुझे बहुत कम प्लांट्स मेरे लगाए हुए दिखाई दिए. मे बी उन्होंने बिल्डिंग्स ने उनकी जगह ले ली.
बट वो बहुत अच्छा एक नया न्यू कॉनिफर्स थे जो आपके बड़े काम के हो सकते थे, बट इट्स अप टू द यूनिवर्सिटी टू कीप देम और नॉट टू कीप देम। ओके, सो मैं 1993 से ये फ्लोरिकल्चर का काम करता हूँ। अर्लियर आई वाज वर्किंग विद माय ब्रदर। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं अपने नाम से तो काम नहीं कर सकता था, तो मेरे भाई के नाम से काम था। उसके बाद 2006 में मेरा छोटा वाला बेटा MBA करके आया एंड ही और वो फिर उसने ये कंपनी हमारी ज्वाइन कर ली। तब हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम 1993 में हम लोगों ने पहला बीज एक्सपोर्ट किया था 1993 में, और वो सिर्फ 25 kg सीड था, ओनली 25 kg सीड टू ए कंपनी कॉल्ड एमरल्ड सीड्स इन USA। तो उसको हमने 25 kg सीड सप्लाई किया था। उसके बाद 2 साल तक हम सीड ही नहीं प्रोड्यूस कर पाए। वी आर नॉट नोइंग हाउ टू डू इट। वो तरीका नहीं पता था हमें कि कैसे करना, कब उसका सोइंग टाइम है, कब कौन सी डिजीज उसको आती है, कौन से इंसेक्ट्स लगते हैं, कैसे उसको हार्वेस्ट करना है, कैसे उसको क्लीन करना, कुछ भी नहीं पता था। तो 1995 से फिर हम लोगों ने फिर से दोबारा सीड प्रोडक्शन शुरू की। वो उसमें पहले साल 1995 में 160 kg सीड एक्सपोर्ट किया एंड देन इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। आज हम 200 टन सीड एक्सपोर्ट करते हैं, सो विच इज साइजेबल एज कंपेयर टू द वन विच वी स्टार्टेड 1993 में जो शुरू किया। वो हम क्या करते हैं, ये करते हैं हम पॉइंटर है ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग वीट को रिप्लेस करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में आजकल वीट क्रॉप लगती है नवंबर के सीजन में। गेहूं की फसल लगती है, गंदम की फसल लगती है। उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं अपने फूलों की फसल के साथ। तो जो वीट की फसल है वो जनरली 20 क्विंटल निकलती है पर एकड़, और अबाउट 2200 रुपए उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो उसके हिसाब से वो 40-44 हजार की होती है। और ये जो हमारी फसल है जो हम लोग लगाते हैं, ये 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक की हो जाती है। तो ऑलमोस्ट डबल टू 3 टाइम्स प्रॉफिट देती है। सो वीट इन पंजाब एग्रीकल्चर इज सपोज टू बी एक ऐसी फसल सोची जाती है जो कि बहुत कम इनकम देती है। 40,000 की होती है, 10,000 खर्चा आ जाता है, 30,000 ही बचते हैं पर एकड़। और उसके मुकाबले अगर आप ये हमारी वाली फसल लगाते हैं तो ये फसल आपको 1.5 लाख तक देती है, जो कि वीट का 3 गुना 4 गुना है। तो दो इस पे खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है, बट ये क्रॉप जो है ये फार्मर को बहुत अच्छा पैसा देगी। अब इसमें हमने कुछ इनोवेशंस किए हैं। जो इनोवेशंस ऐसी हैं कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव की, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंप्रूव की। हमने सीखा कि कब इसकी सीडलिंग सोइंग करनी चाहिए, कब इसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, कौन सी फसल कितना पानी मांगती है, कौन सी फसल कौन सी डिजीज लगती है उसको, कौन सी फसल को क्या इंसेक्ट आता है, वो सारा कुछ। प्लस किस फसल को पॉलीथीन मल्च पे ग्रो करना चाहिए, किस फसल को फ्लैट फील्ड पे ग्रो करना चाहिए, किस फसल को बेड्स पे ग्रो करना चाहिए। तो ये सारी इनोवेशंस हमने विद एक्सपीरियंस, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो फ्लावर सीड प्रोडक्शन पे काम करती है। फ्लावर सीड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी
किसी पैकेज प्रैक्टिस में नहीं मिलती, वो सीड प्रोड्यूसिंग कंपनीज को ही डेवलप करनी पड़ती है। तो हमने ये डेवलप की हुई है। अब हम लोग जैसे हमारे पास जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें 74 किलोवाट सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं और उसी से हम अपनी सारी फैक्ट्री चलाते हैं। बिल्कुल ग्रीन इंडस्ट्री है। हम सारी की सारी जो एनर्जी चाहिए होती है सोलर प्रोड्यूस करते हैं। जो पानी आसमान से गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, उसको जमीन में उतार देते हैं, रिचार्ज कर देते हैं ग्राउंड को। बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड के साथ हम केमिकल्स भी कुछ यूज करते हैं, बट ये एक एडिशनल चीज है जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब होने से बचाती है। फार्म के जो फार्मर्स हैं उनको अपने फार्म पे बुला के ट्रेनिंग करते हैं एंड एज वेल एज स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल कॉलेज चिल्ड्रन हमारे पास आते हैं और उनको भी हम ट्रेन करते हैं टू ग्रो ए फ्लावर क्रॉप। वो हमारे एम्बेसडर्स बन के वहां से जाते हैं। वो जब कहीं भी जाते हैं तो दे टेल पीपल कि कैसे आपको ये इस फसल को करना है, कैसे आप ये फसल कर सकते हैं और इसमें से क्या एडवांटेजेस है। तो नेचुरली ये जो भी हम करते हैं मोस्ट ऑफ इट गोज एज एक्सपोर्ट। तो इससे कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न होती है। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि हम एक बिजनेस के हिसाब से करते हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट भी हमारी कंपनी का एक मोटो है, जिसमें 200 फार्मर्स इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। 200 फार्मर्स इन पंजाब वो इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। वो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। मैं उसका मॉडल आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। 150 लेडीज हम लोग उनको काम पे लगाते हैं फॉर 3 to 4 months। वो विलेजेस से लाते हैं उनको, वो हमारे फार्म पे काम करते हैं और वो काम करके अच्छा अर्न करती हैं, फैमिली चलाती हैं अपनी। और जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं कंपनी में, एम्प्लॉइज हैं 43, उन सारे 43 एम्प्लॉइज के गर्ल चाइल्ड को, उनकी लड़कियों को हम एजुकेशन देते हैं। 100% स्पॉन्सर है, सरकारी स्कूल से निकाल के उनको एक प्राइवेट स्कूल में डालते हैं ऑन आवर कॉस्ट। सो दिस इज, आप कह सकते हैं कि हम ये सोशल जिम्मेदारियां हैं हमारी जो हम इंस्टेड ऑफ बिजनेस करते हैं। अब 1993 से 2023 तक हमने क्या किया। अब नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स में हम लार्जेस्ट कंपनी हैं जो फ्लावर सीड प्रोड्यूस करते हैं। और कंपनियां एक दो हैं जो फ्लावर सीड प्लस वेजिटेबल करती हैं। फ्लावर सीड भी करते हैं मगर फ्लावर सीड थोड़ा करते हैं, वेजिटेबल्स में ज्यादा चले गए क्योंकि वेजिटेबल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है और उसका प्रोडक्शन एरिया भी डिफरेंट है, कर्नाटका में, पंजाब में। तो हम ये सीड प्रोड्यूस करके फिर इसको हॉलैंड, यूएसए, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, ओमान, यूके, इंडोनेशिया एंड टर्की, इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। जितना भी सारा सीड हम प्रोड्यूस करते हैं उसका अबाउट 90% सीड एक्सपोर्ट हो जाता है। 10% इज नीडेड फॉर इंडियन मार्केट। तो वो इंडिया के में हम लोग कैसे उसको मार्केट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो आई बी शोइंग इट टू यू। हम लोग डिफरेंट फूलों की वैरायटीज प्रोड्यूस करते हैं, 140 वैरायटीज। जैसे फ्लॉक्स एक वैरायटी है, फ्लॉक्स एक क्रॉप है, तो इसमें 5-6 डिफरेंट वैरायटीज हैं। जैसे पेंजी एक वैरायटी है, पेंजी की 3-4 और इसकी वैरायटीज हैं। कैलेंडुला एक है, तो कैलेंडुला की 4-5-6 वैरायटीज हैं। तो इस हिसाब से हम लोग 140 वैरायटीज फ्लावर्स की प्रोड्यूस करते हैं, विच इज, और इसको ऐसे ही नहीं हमने शुरू कर लिया कि जो भी मर्जी आए वैरायटी हम उसको प्रोड्यूस करने लगते हैं। वो वैरायटी को पहले अपने फार्म पे टेस्ट करते हैं फॉर 2 years। 2 years उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी देखते हैं,
उसकी इकोनॉमिक्स निकालते हैं। जब वो हमारे फार्म पे उसकी इकोनॉमिक्स सेट हो जाती है, वो हमें लगता है कि 1 लाख से ज्यादा पैसे देती है, फिर उसको फार्मर फील्ड पे ट्रांसफर करते हैं। पहले उसको ऐसा नहीं कि हम एक वैरायटी आई नहीं और उसको हमने फार्मर को देना शुरू कर दिया, वो फेलियर हो सकती है। उसमें क्या इंसेक्ट क्या डिजीज लगेगी उसको नहीं पता, ना हमें पता, हम फिर उसको बैकअप सपोर्ट भी नहीं दे पाए। तो ये हम पहले वो वैरायटीज को टेस्ट करते हैं, देन दोज वैरायटीज गो टू द फार्मर फील्ड। और आज हम 200 टन्स के करीब सीड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज इन फ्लावर सीड। देखिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ। जैसे पटोनिया है, पटोनिया का 1 ग्राम सीड में 13 से 16,000 सीड होते हैं। 1 ग्राम ऑफ पटोनिया सीड हैज 13,000 से 16,000 सीड। तो पटोनिया का जैसे हम लोग लगभग 12-15 क्विंटल सीड एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट वैरायटीज का। तो इसी तरह से एक वैरायटी है कोरियोप्सिस लैंसियोलेटा। वो बीज मोटा होता है मगर लाइट होता है। उसकी डिमांड हमारे पास इतनी आती है कि हम उसका 150 एकड़ से 200 एकड़ तक लगाते हैं और 1 एकड़ में 5 क्विंटल सीड प्रोड्यूस होता है, 500 kgs। तो इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज हैं। तो उनका सारा सीड जो हम टोटल लास्ट ईयर की जो हमारी एक्सपोर्ट है, इट्स नियर 200 टन, so which becomes a huge quantity in flower seeds. वीट के लिए ये कोई क्वांटिटी नहीं, मगर फूलों के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी। फिर इंडियन मार्केट में भी हम सीड सप्लाई करते हैं। इंडियन मार्केट में हम 2 तरह का सीड सप्लाई करते हैं। जो ये सीड हम लोग सप्लाई करते हैं, दिस इज ओपी सीड, ओपन पॉलिनेटेड सीड। इसका पॉलिनेशन कंट्रोल कोई नहीं। आप लोग तो सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि मेल स्टेबिलिटी सिस्टम, दिस सिस्टम, दैट सिस्टम, इसमें कुछ नहीं करते। इट इज ओपन पॉलिनेटेड, आइसोलेशन में लगाते हैं। एक फार्मर के एक वैरायटी लगाई, दूसरे फार्मर के 2 किलोमीटर दूर वो वैरायटी लगाते हैं, सो दैट उसको क्रॉस ना हो जाए आपस में। ओपन पॉलिनेटेड, और उसकी प्योरिटी 100% मेंटेन करते हैं। तो यही नहीं है कि हम लोग उसको लगा दिया और सीड हार्वेस्ट कर लिया और बाहर भेज दिया। उस सीड को जो हमने लगाया है उसको देखने के लिए बायर आता है एक साथ, जो चाहे यूएसए से है, चाहे वो हॉलैंड से है, कहीं से भी है। ऑल बायर्स कम टू अस इन द मंथ ऑफ मार्च। वो अपने प्लॉट्स देखता है। सपोजिंग एक बायर के 200 प्लॉट्स लगे हैं, he visits every 200 plots। तो उसमें वो देखता है कि क्या इसमें प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है, क्या इसमें प्योरिटी है, और क्या कैसे हम लोग जाके बुक करना शुरू कर सकते हैं कि नहीं। सो दे स्टार्टेड बुकिंग द सीड व्हेन दे गो बैक ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट दैट व्हिच दे हैव मेड। तो इसलिए सारे बायर्स भी हमारे पास आते हैं और वो अपने अपने फील्ड्स देख के जाते हैं, उसकी असेसमेंट भी करते हैं। और हमारे पास एक प्रोग्राम है जिससे हर एक बायर के फील्ड की जितनी भी विजिट हम करेंगे, उस वक्त जाके हम उसका एक तो जीपीएस लेते हैं, जीपीएस पिन पॉइंट करते हैं उसे, और उसकी जितनी फोटोज हम खींचते हैं वो उस बायर को पहुंच जाती है। तो वो बायर कैन सी वर्चुअली के मेरा फील्ड का इस महीने ये हाल है, नेक्स्ट मंथ ये हाल है, एंड देन वी कीप ऑन शेयरिंग द वेदर कंडीशंस। इस महीने इतनी बारिश हुई, इतनी हवा चली, क्या हुआ, सो दैट बिकॉज दिस इज ए एक्सपेंसिव क्रॉप, और जो जिसने हमारे साथ लगाई है वो फेलियर नहीं चाहता। और आज बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन में वेदर इतनी अनसर्टन हो गई है कि आपको उस बंदे को जो अमेरिका में बैठा है उसको बताना पड़ता है कि अगर देयर इज सम फेलियर, अगर कुछ होता है तो उसको क्या हुआ, क्यों हुआ, कितनी बारिश पड़ी। सो एवरीथिंग वी कीप ऑन इन्फॉर्मिंग आवर बायर्स
कि हमारा ये सिचुएशन है आज के दिन। तो वो सारा कुछ हम कंटिन्यू करते हैं और हम लोग अपनी वेबसाइट पे भी फ्लावर सीड सेल करते हैं, विच इज www.biocarb.com। ये हमारा प्रोडक्शन मॉडल है। इसमें देखिए 80 से 110 एकड़ के करीब हम हर एक साल अपने फार्म पे प्रोडक्शन करते हैं। 1000 प्लस एकर्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स हैं पंजाब में और कर्नाटका में और राजस्थान, उनके पास हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मेथड मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसा। और उसके बाद हमारा वेल इक्विप्ड स्टेट ऑफ आर्ट सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, जहाँ पे हम लोग उस सीड को क्लीन करते हैं जाके। ये 3 जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑन द लेफ्ट लिखे हुए हैं। अब प्रोडक्शन मॉडल क्या है? प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है पहले अक्टूबर के महीने में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है फार्मर के साथ कि आप ये क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे। लेट्स सी 1 2 3, एक पेंसी है, एक एंटीरियम है, एक डेजी है और एक कैलेंडुला, 4 क्रॉप्स कर रही हैं, उसकी ये वैरायटीज करनी है। और हर एक वैरायटी का रेट ऑफ परचेज क्या है, बाई बैक प्राइस क्या है। जो भी फार्मर हमारे साथ लगाएगा उसको कहीं और बेचने जाने की सोच नहीं होनी, क्योंकि हमने उसका सारा 100% बाई बैक करना। तो उसको प्राइस दे देते हैं लेके, प्लस उसको ये भी दे देते हैं कि कितनी प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है। तो उसको पहले ही पता होता है कि मेरी जो 1 एकड़ है उसमें से ये निकलेगा, तो उसके हिसाब से वो फिर प्रोडक्शन करनी शुरू करता है। इसके बाद जो भी प्रोडक्शन हुई, जो भी बुक हुई प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन जो बुक हुई उसको किसी चीज से लगाना है, या तो सीड लगेगा या फिर सीडलिंग लगेगी। ये सीड एंड सीडलिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका हम कोई पैसा फार्मर से नहीं लेते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बदनाम है जो पंजाब में हुई, उसमें बहुत से लोग आए, स्टीविया लेके आए, सफेद मूसली लेके आए, उन्होंने 80-80 हजार का, लाख रुपए का सीडलिंग सेल कर दी और उसके बाद उसकी क्रॉप निकली 40 हजार की। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में बहुत बदनाम थी। तो उसको करने का तरीका यही था कि सीडलिंग की कॉस्ट हम फार्मर पे ना डालें। सीडलिंग की कॉस्ट हम बियर करते हैं, हम उसको ग्रो करते हैं ऑन ए लार्जर एरिया और उसको ग्रो करके फार्मर के फील्ड में पहुंचाते हैं। नॉट दैट कि उसको हम लोग कहते हैं कि आके ले जाओ, फार्मर के फील्ड में पहुंचाते हैं, और चाहे वो सीड हो चाहे वो सीडलिंग हो। फिर उसके बाद हर एक महीने उसके फार्म पे जाते हैं, उसको जाके बताते हैं कि आपकी क्रॉप अच्छी है, मीडियम है या बुरी, आपने क्या नहीं किया। अगर आपने उसकी वो होइंग नहीं की, उसमें से बीड नहीं निकाले, तो नेचुरली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ईल्ड। अगर उसमें डिजीज लग गई कोई, तो उसका कंट्रोल नहीं किया, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड क्रॉप। तो उनको एवरी मंथ हम जाते हैं उसके फील्ड में और जाके बताते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। फिर उसके बाद जब वो सीड पक जाता है, उसके पास सीड पक गया, उसके पास 20 बैग पोजिंग सीड के हो गए, तो उसको पिकअप भी कर लेते हैं उसके बाद। उसको पिकअप करके अपने फार्म पे ले आते हैं, अपने जहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट है वहां पे ले आते हैं। फिर उसके बाद वो जो सीड आया हमारे पास, उसको हम अपने आप ही सफाई नहीं कर देते, वो फार्मर के सामने सफाई करते हैं। उसका रीजन है कि अगर आपने 100 kg सीड भेजा है, तो उसमें से 10 kg 5 kg आपको वेस्टेज निकलेगी। तो जो फार्मर है वो सोचता है कि अगर मेरा 2000 रुपए kg वाला सीड था, उसमें से इन्होंने 10 kg निकाल दिया, तो वो कहाँ गया? तो अगर वो सामने खड़ा है तो उसको पता है कि ये निकला मेरा सीड, तो उसको शक वहम नहीं होगा। तो
तो इसलिए फार्मर के सामने उसकी क्लीनिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट हो जाती है। पेमेंट इन अकाउंट करते हैं, कैश नहीं होती, इन अकाउंट उसको पेमेंट कर दी जाती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे फार्मर्स हैं, ये फार्मर्स को ट्रेनिंग कैसे होती है। वो आते हैं हमारे पास इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर और उनको बताया जाता है कि कैसे आप क्रॉप करेंगे, कौन सी क्रॉप करेंगे। ऊपर वाली 2 फोटोज हुआ है, उनको बताया जा रहा है कि कौन सी क्रॉप आप कर सकते हो। अब हमारे पास ऐसे फार्मर्स हैं जो 1996 से कंटिन्यूसली हमारी क्रॉप कर रहे हैं। 1996 से हमारी क्रॉप कर रहे हैं, सो दे नो हाउ टू डू। उनको ज्यादा बताना नहीं पड़ता, बट एवरी ईयर अराउंड 30% न्यू फार्मर्स आर एडेड। उनको बताना पड़ता है कि आपको कैसे करना है, बेड्स कैसे बनाने हैं, फर्टिलाइजर कैसे डालना है, उसके बाद आपको अगर मल्चिंग करनी है तो कैसे करनी है, उसके बाद आपने कैसे लगाना है, कितनी कितनी दूर 2 लाइनें लगनी है या 1 लगनी है, वो सारा कुछ उनको बताना। और नीचे हमारे पास हैं जो स्टूडेंट्स हमें विजिट करते हैं। एवरी ईयर अबाउट 20 डिफरेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स दे कम टू अवर फार्म टू विजिट के क्या डिफरेंट खेती हो सकती है, डिफरेंट खेती क्या हो सकती है जो वीट को रिप्लेस करे, क्योंकि वीट इज सपोज्ड टू बी ए लो पेइंग क्रॉप। तो इस वजह से उनको हम अपने फार्म पे बुलाते हैं और उनको बुला के उनको सारे फार्म का चक्कर लगवाते हैं और बताते हैं कि ये क्रॉप्स हैं, इनके ये प्राइस हैं, ऐसे सीड निकालते हैं, ये डिजीज लग सकती है या उसका क्या आपको करना चाहिए। अब प्रोसेस क्या है, जो भी सीड हमारे फार्म पे हम इंडियन मार्केट में सेल करते हैं, वो एवरी 60 डेज उसकी जर्मिनेशन चेक होती है। वो सीड ऐसा नहीं है कि रखा हुआ है और उसको आप बेचे जा रहे हो। एवरी 60 डेज उसकी चेक होती है और उसके लिए हमारे पास एक ISTA स्पेसिफाइड लैब है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। उसमें टेस्ट करते हैं उसकी जर्मिनेशन, प्योरिटी एक बार करते हैं, जर्मिनेशन बार बार करते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ सीड किया फार्म से, उसकी क्लीनिंग ग्रेडिंग की, फिर उसके बाद अगर उसकी जर्मिनेशन टेस्ट है वो पास हो गया तो दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज दैट गोज बैक टू द ग्रेडिंग प्रोसेस। अगर सपोजिंग हमें 85% जर्मिनेशन चाहिए और 70% जर्मिनेशन आ गई तो वो रीग्रेडिंग के लिए जाता है, रीग्रेड होके फिर से जर्मिनेशन लगती है जब तक उसकी जर्मिनेशन 85% ना आ जाए। जनरली जो आउट ऑफ इंडिया जो सीड जाता है उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज इज 85% और प्योरिटी इज 99% विदाउट obnoxious सीड्स। जैसे कास्कुटा है, अमर बेल एक प्लांट होता है, तो उसका एक सीड भी अगर एक कंटेनर में हो तो वो सीड एंटर नहीं कर सकता, वो कंटेनर एंटर नहीं कर सकता यूएस में। तो वो पहले ही हमें चेक करना पड़ता है अपने यहाँ पे कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है सीड में। आप देखिए अगर आपने एक कंटेनर सीड भेजा तो $44,000 लगते हैं कंटेनर को इंडिया से यूएसए भेजने के लिए, और अगर जाके वो वहां पे फेल हो जाए तो 44,000 और लगेंगे वापस लाने के लिए। तो उसमें क्या बचेगा? तो उससे अच्छा ये है कि पहले ही आप उसको इस तरह इतनी अच्छी तरह चेक करके भेजो कि आपका सीड कभी फेल ना हो सके। हम लोग इसको 30 साल से काम को कर रहे हैं, आज तक कोई सीड फेल नहीं हुआ। और दैट क्वालिटी स्पीक्स। उस क्वालिटी को देख के हमारे पास हर एक साल 1.5 गुना लोग आ रहे हैं, 1.5 गुना ऑर्डर्स आ रहे हैं। So now these are the technologies for cultivation. सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं अपने फार्म पे, दैट इज मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग। प्लास्टिक की एक शीट होती है, मैं दिखाऊंगा आगे वो आपको, उसको स्प्रेड करते हैं ऑन द बेड्स।
फर्टिलाइजर मशीन है, वो फर्टिलाइजर डालती है, बेड बनाती है और मल्चिंग स्प्रेड करती है। तो एक दिन में और 4 एकड़ वो मल्चिंग बिछा देती है और वो मल्चिंग से मतलब आपको 3-4 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि आपका कोई वीड ऊपर नहीं निकलता, ब्लैक प्लास्टिक है, उसके नीचे से वीड कोई नहीं निकलता। सो वीड कंट्रोल की आपकी प्रॉब्लम खत्म हो। दूसरी चीज, इसमें जो फर्टिलाइजर आपने नीचे डाला, जनरली जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं उसका बहुत लॉस होता है, चाहे वो उड़ जाए चाहे वो लीच कर, वो सारी कंट्रोल हो जाए। तीसरी, विंटर सीजन में जब बाहर का टेम्परेचर पंजाब में 3-4 डिग्री आ जाता है तो रूट का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री हाई आता है, तो प्लांट को पता नहीं चलता कि बाहर ठंड है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। एंड जो मल्च पे जो क्रॉप ग्रो होती है उसकी यील्ड 1.5 टाइम्स हो जाती है, 150% हो जाती है। सो एक तो ये मल्चिंग की टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है अपने अकाउंट पे। फार्मर को हम नहीं कहते, फार्मर जिसने करना है वो कर ले, बट अदरवाइज हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप ये जरूर करो, बट ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। दूसरी, इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लीनिंग है उसमें, क्योंकि फार्मर को हम बुलाते हैं उसके सामने सीड को क्लीन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें कोई सीड क्लीन हो जाए, क्योंकि फार्मर वहां बैठा है, फार्मर के रहने की जगह बनी हुई है, वहां पे उसको रोटी दे रहे हैं। अगर 200 फार्मर है, अगर हम उसके इतने दिन लगा देंगे तो 200 फार्मर को तो महीनों में हम लोग वो कर पाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स की 2 मंथ्स की विंडो होती है हमारे पास ग्रेडिंग की। 2 मंथ्स में ग्रेड करना होता है, डे एंड नाइट ग्रेडिंग चलती है। तो वो ऐसी मशीनरी चाहिए जो आपका सीड भी क्लीन कर दे और क्विकली भी कर दे, तो वो हमारे पास है। प्रोसीजन भी होनी चाहिए उसमें, जो इस बार किया वो अगली बार भी वही प्रोसीजन है, सो दैट मतलब जो भी सीड हो वो प्रॉपरली क्लीन हो। फिर उसके बाद जो भी सीड हम यहाँ से इंडिया से बाहर भेजते हैं उसको ऐसे नहीं कि आपने बैग में भरा, डिब्बों में भरा और बाहर भेज दिया, उसमें हम डाटा लॉगर्स डालते हैं। डाटा लॉगर, एक डाटा लॉगर $2,000 का आता है। तो जितनी शिपमेंट्स हमारी जाती हैं, हर एक शिपमेंट में एक डाटा लॉगर होता है, जो हर एक हाफ एन आवर उसमें क्या प्रेशर है, क्या मॉइस्चर लेवल है, और अगर उसमें कोई जर्क लगी है सीड में, वो सारा कुछ वो कंट्रोल करता है और रिकॉर्ड करता है उसमें। जब वो सीड डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वो डाटा लॉगर को लगा के सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 2 फायदे हो गए उसके। एक तो जो भी अगर रास्ते में कोई नुकसान हुआ उसका, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं, और दूसरी, अगर हमें उसका इंश्योरेंस लेना पड़ा तो हमारे पास एक वैलिड डाटा है एवरी हाफ एन आवर का, चाहे वो सीट 40 दिन में पहुंचा चाहे 25 दिन में पहुंचा, एवरी हाफ एन आवर का डाटा है हमारे पास। तो वो एक टाइम का खर्चा है, $2000 का एक डाटा लॉगर आता है, बट वो एक बार का खर्चा था, वो हो चुका। अब वो डाटा लॉगर खाली वापस आ जाते हैं हमारे पास, इधर से हम फिर हर एक शिपमेंट के साथ वो भेजते हैं। अब कैसे हम ऑर्डर्स लेते हैं, कैसे हम नए ऑर्डर्स लेते हैं, इसके ये इधर इंडियन ऑर्डर्स हैं और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं। कैसे लेते हैं, एक तो हम 4 डिफरेंट मेले इंडिया के अटेंड करते हैं। एक CII चंडीगढ़ एग्रोटेक के नाम से होती है, जनरली इन द मंथ ऑफ फरवरी, वो अटेंड करते हैं। फिर एक मीडिया टुडे करता है, वो चाहे बेंगलोर में करे, चाहे पूना में करे, चाहे कहीं भी करे, वो अटेंड करते हैं। फिर एक
कृषि विज्ञान विकास एक्सपो लगती है, जनरली पूना में लगती है या कहीं भी लगती है, वो डिफरेंट सिटीज में, वो अटेंड करते हैं। और तीसरा चौथा किसान, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एवरी ईयर होता है। तो इसमें हम जाके अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं, उनको दिखाते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और उसमें सेल भी करते हैं। तो वो लोग जो भी देखता है उसको बायोपार का ब्रांड जाता है, तो एक तरह की ब्रांडिंग होती है हमारी, और उसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें काफ़ी हमारी सेल बढ़ती है। और इंटरनेशनली कैसे हम प्रोडक्ट के ऑर्डर लेते हैं। कुछ तो हमारे बाहर ऐसे हैं जो हमारे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, 93 से ऑनवर्ड्स हमारे साथ ही हैं, और उनसे भी हर एक साल नया ऑर्डर लेना पड़ता है। ये नहीं है कि एक साल उसने ऑर्डर दे दिया उतना उतना प्रोड्यूस करेगा, हर एक साल नया ऑर्डर लेना पड़ता है। और कुछ ऑर्डर हम ऐसे लेते हैं, एशिया पैसिफिक सीड एसोसिएशन एक फोरम है जो एशिया पैसिफिक के किसी कंट्री में हर एक साल एक शो करती है, जहाँ पे हम लोग अपने बायर से मिल सकते हैं। ये ज्यादा वैसे ये वेजिटेबल का शो है, बट स्टिल इसमें फ्लावर्स भी होते हैं, इसको हम लोग अटेंड करते हैं जनरली हर एक साल। दूसरा एस्टा है, दिस इज अमेरिकन शो, जिसमें वेजिटेबल एंड फ्लावर सीड के सारे यूएस के बायर हैं। तो दिस इज वन प्लेस जहाँ पे आप सारे बायर को मिल सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि वहाँ पे एक टेबल परचेज करना पड़ता है आपको, वो टेबल आप परचेज करके अपने सारे कस्टमर्स को सबको देते हैं कि मेरे पास ये टेबल है। फिर उसके बाद उसमें हाफ एन आवर की स्लॉट्स होते हैं, हाफ एन आवर कोई भी बायर आपको आके मिल सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपको ऑर्डर दे सकता है, या कोई और उसकी कोई क्वारी है तो वो कर सकता है। तो इसी तरह से फिर IPM है, जर्मनी में लगती है ये एक लाइव फ्लावर शो होता है जिसमें सारे बायर्स वो अपने अपने फ्लावर्स को शोकेस करते हैं वहाँ पे। और इसी तरह से ISF ऑस्ट्रेलिया में होती है, ये भी एक बहुत बड़ा शो है जो वहाँ पे लगता है। तो इन 4 शोज में हम हर एक साल पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज ए वेरी एक्सपेंसिव वेंचर, मगर इससे हमें नए ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये हमारे सक्सेस डिटर्मिनेंट्स है जिसके बेसिस पे हम लोगों को ऑर्डर्स करते हैं। एक तो है हमारी क्वालिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक भी obnoxious सीड किसी कंटेनर में पकड़ा गया, that container would not enter that mainland, that has to come back। और हम लोग अराउंड 44 कंटेनर्स हर एक साल एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें किसी में भी कोई obnoxious सीड नहीं चाहिए ताकि वो उस मेनलैंड में एंटर कर सके। फिर उसके बाद क्या है, हम लोग 25 kg से अप टू 100 टन तक पहुंचे हैं बिकॉज ऑफ अवर क्वालिटी। एवरी ईयर वी आर इंक्रीजिंग विद द ऑर्डर्स, और इतने ऑर्डर्स होते हैं कि हमसे मीट नहीं होते। फिर उसके बाद क्लाइंटेल जो है पहले एक थी 1993 में, अब हम 14 डिफरेंट इंपोर्टर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 14 डिफरेंट इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और फार्मर पहले हमारे पास 5 थे, अब हमारे पास 200 है, 190। तो ये चीज इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर।
तो ये हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, ये किसी भी बिजनेस के क्वालिटी पैरामीटर होने चाहिए। आपके अगर क्वालिटी कुछ नहीं तो आप किसी काम के नहीं। क्वालिटी एक्सपोर्ट में तो 100% मीन्स 100%, 99 नहीं। अगर आप ये कर सकते हैं ओनली देन एक्सपोर्ट इज पॉसिबल। अब इसलिए हम लोग इसके बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि फार्मर्स को कहें कि आप टेलीपोर्ट करो टू बायोफार्म, आप बायोफार्म में आओ। इंस्टेड ऑफ wheat you start growing flower crops। ये हमारी ऑफिस बिल्डिंग है जहाँ से हम काम करते हैं। ये अबाउट 2 एकड़ में लगा हुआ प्लांट है जहाँ से हम सारा अपना प्रोसेसिंग प्लांट है, जर्मिनेशन लैब्स हैं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, और यहीं पे हम रहते हैं और फील्ड में रहते हैं। कोई भी खेती हम लोग 110 एकड़ की खेती करते हैं, तो किसी बड़े शहर में रह के और 100 किलोमीटर दूर जाके आप खेती नहीं कर सकते। अगर आप ये करने की सोच रहे हैं खेती, तो आप मत करो, यू कैन नॉट ग्रो, आपको नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आजकल सब तरह की प्रिफरेंस होती है, फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की, ट्रैक्टर के डीजल की, सबका नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छी खेती करनी है तो यू हैव टू स्टे ऑन द फार्म। तो इस वजह से हम लोग यहीं पर रहते हैं। ऑन द राइट साइड इज माय ऑफिस। अच्छा, ये अब क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ये है किस तरह से लैंड प्रिपेयर करनी है फॉर सोइंग ऑफ नर्सरी और सोइंग ऑफ सीडलिंग इन द फील्ड। वेल प्रिपेयर्ड सॉइल चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने जस्ट सिंपल एक बार प्लॉ किया और बीज दिया। ये राइट साइड पे इसकी फाइन टिल्स बनाई जा रही है। एक मशीन है जो इसको बहुत फाइन टिल्स बनाती है, तो उसको यूज कर रहे हैं हम। ये अब नर्सरी सोइंग हो रही है। जो भी सीड हमने आपको देना है, सीडलिंग आपको देनी है, उसकी नर्सरी बनाई जाती है, पहले सीडलिंग बनाई जाती है। सीडलिंग बनाने के लिए उसको बेड को प्रिंट किया जाता है with the help of this printer. We have a new printer now which works automatically. वो अपने आप रन करता है और इस तरह की चैनल्स बना देता है बेड के ऊपर। और बेड के ऊपर जब चैनल्स बनी है, then you spread the seed like this without thinking। आपको लाइन में नहीं डालना, वो चैनल बनी है, वो चैनल अपने आप ही सीड को दोनों फरोज में डाल देगी। तो आपको बहुत इजी हो जाता है सीड को बीजना। ये हम पहले इस तरह से पानी इसको मैनेज करते थे। आजकल कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ये माइक्रो स्प्रिंकलर्स लगे हैं, और माइक्रो स्प्रिंकलर्स भी हमारे एक वेंचुरी से होके जाते हैं। वेंचुरी इज अ प्रोसेस जिसमें आप फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या कोई भी बायोकेमिकल देना है, वो सारा कुछ आप उससे दे सकते हैं। तो उसका तरीका ये है, इन जो स्प्रिंकलर्स हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर्स, इसके थ्रू हम अपनी नर्सरी प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से नर्सरी प्रोड्यूस हो जाती है। ही इज माय सन सिटिंग हियर, तो ये नर्सरी को देख रहा है। तो इस तरह से नर्सरी प्रोड्यूस हो जाती है। इट इज अबाउट 2 to 4 इंचेस टॉप जब हम उसको फार्मर को सप्लाई करते हैं। तो फार्मर को सप्लाई करने से पहले इस नर्सरी की हार्डनिंग करते हैं ताकि इसकी रूट लेंथ ग्रोथ बहुत हो जाए और ऊपर का ग्रोथ ना करे ज्यादा। और इसको 2-3 स्ट्रेस देते हैं, और उस स्ट्रेस देने के बाद इसको रूटिंग करवाते हैं इसकी अच्छी सी, ताकि एक भी प्लांट फार्मर के साथ पास जाके मरे। तो इसको ये नर्सरी बना के फिर इसको डिब्बों में पैक करके फार्मर के पास भेजा जाता है और उसको जाके बताया जाता है। ये हमारी जो सारी नर्सरी है ऑन ए बेड लगती है, बेड ऑफ 2 फीट विड्थ। तो उस पे 2 लाइनें लगती हैं, कि इधर एक उधर। और वहां जाके हम बताते हैं कि 2 लाइनें तो लगनी है,
प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होगा, वो जाके उसको वहां फार्म पे बताते हैं। जब नर्सरी लगानी है तो उसको कहते हैं एक रात पहले इसको इरिगेट कर दो, चैनल में पानी डाल दो, सो दैट उसकी मॉइस्चर जो है ऊपर बेड तक चढ़ जाए। तो जहां तक मॉइस्चर चढ़ी हुई है उसमें 4 इंच अंदर तक हम सीडलिंग लगाते हैं। और जो सीड लगाना वो सूखे बेड पे लगा के बाद में पानी देना। सीडलिंग लगाने के लिए आपको पहले पानी देना, फिर उसके बाद सीडलिंग लगानी है, और सीड पहले लगाना है, फिर उसके बाद उसको इरिगेट करना है। ये है जी पॉलिथीन मल्चिंग। ये इस तरह से मल्च बिछा देती है मशीन। बिछाने के बाद इसके बीच में हमारे पास मशीन के पीछे ही लगा है जो एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे होल्स निकाल देता है इसमें। ये आप देखेंगे इसमें होल्स निकले हुए हैं, तो इन होल्स में या तो सीड लगेगा या सीडलिंग लगेगा। तो इधर उधर कुछ भी ग्रो नहीं करेगा, इसमें कोई वीड नहीं होगा, सारा फील्ड क्लीन होगा। जो इसकी फरोज हैं, जो ऐसे फरो आई उसमें अगर कोई वीड निकलता है तो उसको किसी वीडीसाइड से किल कर देते हैं। कोई भी वीडीसाइड करते हैं उसमें और उसको किल कर देते हैं, ऊपर कुछ होते हैं। तो एक ये टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपनी ईल्ड को 1.5 गुना कर लेते हैं और फर्टिलाइजर को बचा लेते हैं, मॉइस्चर भी इसमें प्रिजर्व रहती है अंदर, और इसके बाद इसकी जो कोई भी अंदर की जो प्रॉब्लम है वो सारी कंट्रोल में रहती है। ये आगे के प्रोसेस है। अब नर्सरी के बाद आपको इसकी जो ये बेड है, अगर ये बेड की गुड़ाई करने में ये बेड गिर गया तो उसको करने के लिए इस तरह की मशीनें हैं जो हाथ से चलती हैं, और ये चलते जाते हैं और बेड पे मिट्टी चढ़ती जाती है बैक में। और इस साइड पे हम लोग स्प्रे कर रहे हैं वेरी फाइन मिस्ट स्प्रे, जो भी अगर इवन इफ इट इज एनपीके और कोई फंजीसाइड है या कोई इंसेक्टिसाइड करते हैं उसको इसी तरह से मशीन से। दिस इज ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्प्रे। ये एक टैंक में 10 एकड़ स्प्रे करता है, तो 10 एकड़ को स्प्रे कर देता है एक दिन में। इसके ऊपर जो राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है दैट इज होइंग प्रोसेस। अगर आपने मल्च नहीं किया तो 2 होइंग्स करनी पड़ेगी। वीड्स होंगे, जो वीड्स का कंपटीशन आपकी मेन क्रॉप से नहीं होना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए आपको ये इस तरह की वीडिंग करनी पड़ेगी। ये और आगे का प्रोसेस है। इसमें देखिए पीछे इसमें ये देखो राइट साइड पे फ्लावर्स अपीयर होने शुरू हो गए। अब ये फ्लावर्स को प्लग कर रहे हैं। फ्लावर्स को कच्चे प्लग नहीं करना, जब इसमें सीड बन जाए तब प्लग करना। तो उसके लिए वो राइट साइड पे ऊपर एक पिक्चर है जिसमें डेजी की सीड की प्लगिंग हो रही है। ये जो डेजी की क्रॉप है इसको कहते हैं हम बैलिस पेरनिस सिंगल वाइट। ये सिंगल वाइट वो क्रॉप है जो 2200 रुपए केजी हम बाई बैक करते हैं और 100 केजी निकलती है पर एकड़। तो मगर इसमें इस तरह से लेडीज को करना पड़ता है एटलीस्ट फर्स्ट 2 पिकिंग्स के लिए। फर्स्ट 2 पिकिंग्स करनी पड़ती है, उसके बाद जितना भी सीड प्रोड्यूस होता है वो किसी चीज पे झाड़ लेते हैं, फिर वो झाड़ते चले जाते हैं एंड तक वो सीड उसी तरह से इकट्ठा होता है। मगर फर्स्ट 2 पिकिंग में इतने फ्लावर्स नहीं होते पके हुए जिनको आप हार्वेस्ट कर सको बाई शेडिंग ऑन थिंग। तो ये बहुत अच्छी क्रॉप है। इस तरह के हमारे पास 2-3 क्रॉप्स हैं बैलिस की। बैलिस की एक क्रॉप है जो डबल है, बैलिस मॉन्स्ट्रोसा डबल, उसकी कीमत है 3000 रुपए पर केजी। एक क्रॉप है बैलिस कॉम्पोनेट मिक्स और डिफरेंट कलर्स, उसकी कीमत है 4000 रुपए पर केजी। ये क्लीन सीड की वैल्यू है, जब सीड क्लीन हो गया तो उसकी कीमत आएगी। तो ये जनरली ये क्रॉप जो है मेहनत मांगती है, लेबर मांगती है, बट ये आपको 2-2.5 लाख रुपए पर एकड़ देती है।
इसमें 30 से 35-40 हज़ार तक का खर्चा भी आ जाता है लेबर का, मगर बाकी बच्चा जो है वो 2 लाख 1.5 लाख से ऊपर ही होता है। तो इस तरह की क्रॉप्स है। इस साइड जो ये क्रॉप आपको दिख रही है ये वेनेडियम है, जिसपे ये हाथ है। वेनेडियम में क्रॉप है जिसका सीड बड़ा मोटा होता है और फ्लावर तोड़ तोड़ के इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये अब डिफरेंट ऑपरेशन हैं जो मैं आपको बता रहा था कि हम करते हैं। पहला ऑपरेशन है, उसमें एक साइड तो देखिए जहाँ पे मल्च हुई है, वो मल्च में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, सारा आपको न्यूट्रिएंट थ्रू लीव्स देना है। एनपीके की स्प्रे करके या कोई भी स्प्रे करके आपको देना है, और आप जमीन में कुछ नहीं डाल सकते, एक बार डाल दिया तो डाल दिया। दूसरी साइड कुछ प्लांट्स हैं जिसमें मल्च नहीं हुई, उनके रूट जोन में फर्टिलाइजर प्लेस करना है। उससे ये होता दोनों काम हो जाते हैं, एक तो आपका फर्टिलाइजर उड़ने से बच जाता, दूसरा प्लांट की इमीडिएट उसको प्लांट को न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो एक सिंपल मशीन है, इसके पीछे एक डिब्बा लगा और वो घूमता है और वो फर्टिलाइजर प्लेस कर देता है रूट जोन। जो दूसरी मशीन इस साइड है वो सीड कलेक्टर है फ्रॉम द ग्राउंड, सख्त करती है मशीन। जो ऐसे सीड्स हैं, ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे एस्कॉलिया को कहते हैं कैलिफोर्निया पॉपी, ये सारे का सारा सीड जमीन पे गिरता है, इसको सक्शन से सख्त करते हैं जमीन से। और ये मशीन है, इसके साथ जनरेटर लगा हुआ है, ये चलती जाती है और कलेक्शन करती जाती है। नीचे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें हमने पॉलिथीन मल्च की हुई है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं सो दैट जो हमारी क्रॉप है वो बेस्ट हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। क्योंकि सर्दी से पहले हम क्रॉप को एटलीस्ट 6 to 8 इंच का कर लेना चाहते हैं, सो दैट उसपे सर्दी का असर ना होगा। अब मैं आपको फील्ड दिखाता हूँ, कुछ हमारे फील्ड जो है, ये एक फील्ड है जिसकी क्रॉप का नाम है ऑस्टियोस्पर्मम। ऑस्टियोस्पर्मम का जो प्लांट है वो यूरोपियन मार्केट में $20 का एक पॉट बिकता है। यहाँ पे हम लोग इसका सीड प्रोड्यूस करते हैं और सीड प्रोड्यूस करके यूरोपियन मार्केट को सप्लाई करते हैं। बहुत अच्छी क्रॉप है, बहुत अच्छा रेट है प्रोडक्शन का भी, और इसका सीड भी बड़ा मोटा होता है, बड़ा इजी टू प्रोड्यूस है ये क्रॉप। ये भी वही क्रॉप है ऑस्टियोस्पर्मम में। नेक्स्ट, अब इसमें 2 क्रॉप्स हैं, एक ये क्रॉप है नमेशिया। नमेशिया ऐसा क्रॉप है जिसकी कीमत अबाउट 1000 रुपए केजी है। तो इसमें लाइट सीड होता है, सीड का वेट लाइट होता है काफी, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम झाड़ते हैं कपड़े पे, इसकी चैनल्स में कपड़ा बिछा लेते हैं और जब सीड पक जाता है तो उसको ऐसे हाथ से शेक करते हैं तो सारा सीड उस पर फॉल करता है। नेक्स्ट क्रॉप जो राइट साइड पे है वो है डोरोथेंसिस ब्रेडिफॉर्मिस, जिसे मेस्मैंथमम भी कहते हैं, इसको आइस प्लांट भी कहते हैं, बर्फ भी कहते हैं। तो ये प्लांट जो है, इसकी जो सीड है बहुत टफ होता है टू रिमूव, इसके जो पॉड्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, इसको थ्रेशर के साथ निकालना पड़ता है, ये ऐसे आराम से नहीं निकलता, बहुत हार्ड पॉड्स होते हैं जिसमें से सीड निकालते हैं। जनरली 300 to 400 kg सीड निकलता है और ये 400 रुपीज पर केजी का सीड है। नीचे आपको डिफरेंट क्रॉप्स दिख रही हैं जो कैलेंडुला की हैं, डिफरेंट कैलेंडुला क्रॉप्स। ये आपको पैंसी की क्रॉप दिख रही है, यहाँ पे आपको ये फूल काफी बड़े दिख रहे हैं, बट ये फूल इतने बड़े नहीं होते, स्मॉल फ्लावर पैंसी है ये, इसको जॉनी जंपअप वैरायटी कहते हैं, वॉयला जॉनी जंपअप, मगर इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बहुत ही डिफरेंट है। ये पॉलिथीन मल्च पे ग्रो करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर 40 गेज का नेट स्प्रेड करते हैं सारे फील्ड पे, और सारा सीड उस नेट पे गिरता है।
जमीन पे गिरता ही नहीं बीज इसका। वो जो वहाँ उसके नेट के ऊपर गिरता है वो सारा सीड वो झाड़ू के साथ इकट्ठा करता है। तो इसमें से 3 लाख से 3,50,000 तक का बीज निकलता है एक एकड़ में से। सिर्फ नेट बिछाने का काम है इसमें। नेट हम लोग फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लगाना उसने स्टेपलर से लगता है। 3-3 फुट की पट्टियां होती हैं, उसको स्टेपलर से जोड़ते हैं, उसमें से सीड निकलती है। 40 मैश का ब्रीक वाली, बहुत बारीक है। उसके साइड में शायद फ्लॉक्स है कि क्या है, एंटीरियम। और नीचे जो है वही वनीडियम था, वाइट वनीडियम। ये वनीडियम है, इसका बीज तोड़ा जा रहा है। ये पके हुए फूल मुरझा जाते हैं, पैटर्न्स खत्म हो जाती हैं, और उसके बाद पका हुआ बीज तोड़ लेते हैं, और बीज बिल्कुल ऊपर ही पड़ा होता है। जैसे ये फूल है, इसके अंदर ही पड़ा होता है, उसको टेढ़ा करो तो बीज गिर जाता है। सो इसका तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बड़े से वेरी गुड, बड़े बड़े फूल होते हैं। ये फ्लॉक्स की क्रॉप है, फ्लॉक्स ब्यूटी मिक्स। तो ये भी बहुत अच्छी, अबाउट 1200-1300 रुपए केजी इसका रेट है। 150 से 200 केजी पर एकड़ निकला। इसका बीज भी जमीन पे गिरता है और जमीन से इकट्ठा करके लाते हैं। और जिस फार्मर से साफ ना हो बीज, उसको कहते हैं कि वॉश करके ले। सीड डोरमेंट होता है, जर्मिनेट नहीं होता। सीड तो लगता प्लांट पे है, फिर जमीन पे गिरता। हाँ, फिर जमीन से कटा उसी वक्त। हाँ, क्रॉप हार्वेस्ट कर ली, जमीन पे सीड पड़ा हुआ, उसको आपने झाड़ू से इकट्ठा कर लिया, उसको वॉश करके लिया, तो ये सीड जर्मिनेट नहीं करता। तो ये 2 लाख की फूल होगा। ये स्पाइडर प्लांट है, आपके यहाँ पे फार्म में भी मैंने देखा लगा हुआ। कलियोम कहते हैं इसको। इसकी फलियां तोड़नी पड़ती हैं पकी हुई। ये काफी अच्छी क्रॉप है, जनरली 3 क्विंटल पर एकड़ की हो जाती है, और 500 रुपीज पर एकड़ पर केजी इसका रेट है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें कांटे होते हैं, और इसके बीच में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट इसकी हमने टेक्नोलॉजी बना ली, एक ही लाइन लगाते हैं पर बेड सेंटर में, दोनों तरफ चलने की जगह होती है। तो आप चल के उसमें जो खाली जगह है उसमें हम अनियन करते हैं। अनियन की एक सेकंड क्रॉप इसी के बीच में लगा देते हैं, अनियन भी हो जाता और क्लोम भी हो जाता। ये पापावर है, आर्टिस्ट ग्लोरी इसका वैरायटी का नाम है। ये भी अबाउट 1000 रुपए केजी है, लगभग 200 केजी के आसपास निकल आता है। और इसकी मोटी मोटी फलियां पॉड्स होते हैं, बहुत इजी टू पिक है। ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं। ऊपर ये अलाइसम है, उधर कैलेंडुला है, नीचे कॉस्मोस है, उधर डायमेंथस है। तो ये डिफरेंट क्रॉप्स, हम लोग ये सारी क्रॉप्स जो दिखा रहा हूँ आपको, ये हो सकती है यहाँ पे भी, वहाँ पे। नेक्स्ट, ये डायमेंथस है, लाक्सपर जिसे कहते हैं। ये सेंटर में एक पापावर है, उसके बाद सिनेरिया है, ऊपर नस्टर्शियम है जिसे ट्रिपोलियम कहते हैं। इधर ये पालूडोसम है, पालूडोसम भी क्राइसेंथेमम की एक वैरायटी है जो बहुत अच्छा सीड 200 केजी तक सीड दे देती है। सेंटर में फिर नवेशिया आ गया, उसके बाद वही बर्फ है जो हम लोग मैरीगोल्ड का सीड भी प्रोड्यूस करते हैं। जनरली मैरीगोल्ड का सीड हम प्रोड्यूस करते हैं सिंगल मैरीगोल्ड, जो कि यूरोपियन मार्केट को चाहिए होता है टू फाइट विद नेमाटोड्स। तो यूरोप में ऑलमोस्ट सारी जो एग्रीकल्चर है वो इन ग्रीन हाउसेज है, और ग्रीन हाउसेज में नेमाटोड बहुत होता है। तो एक सीजन वो लोग सिंगल
पटूला टाइप मैरीगोल्ड लगाते हैं, उससे सारा नेमाटोड के लेवल तो उसका सीड प्रोड्यूस करते हैं। वो तो डायंथस है। सेंटर में डबल पेंथियस है, ये है हेलिक्राइजम और उधर ये पटूनिया है। पटूनिया की हम 10-12 वैराइटीज प्रोड्यूस करते हैं। ऊपर भी पेपर फ्लावर है, उधर एंटीराइनम है, डॉग फ्लावर, सेंटर में कैरिनेटम है, इधर पटूनिया की एक और वैरायटी है और उधर गमफ्रीना। ये गमफ्रीना की वैरायटी है स्ट्रॉबेरी। एक जो आपके यहाँ में लगी हुई है वो पर्पल है। ये ऊपर जो लगा है इसको स्कॉलिया कहते हैं, स्कॉलिया कैलिफोर्निया पॉपी। ये वो प्लांट है जिसका सीड बिल्कुल सेट होता है। सेंटर में है वेल्दवार। ये जो सीड है ये ग्रीन पॉड्स बनती है, हर एक पॉड में 3 सीड लगते हैं, तो इसको हम कंबाइन से हार्वेस्ट करते हैं। कंबाइन काटती इतनी ऊंची प्लांट होता है, कंबाइन इसको काटती चली जाती है और सीड कलेक्ट हो जाता है बीज की तरह। और वो कार्बोरेशन है। इधर ये क्लार्किया है, सेंटर में लाइनम है, उधर क्या है पता नहीं क्या है। अच्छा अब आइए हम बात करते हैं कि सीड कैसे आता है फील्ड से। जब फील्ड में हमने सीड कर लिया तो उसको फर्स्ट प्रोसेस है हमारा टू क्लीन इट बाय सीड्स। उसको मशीन पे चढ़ाने से पहले एक बार रॉ क्लीनिंग करते हैं। इस तरह से लेडीज इसको रॉ क्लीन कर देती हैं सो दैट जो मशीन पे सीड है वो ऑलमोस्ट 90% या 80% क्लीन हो। सो मशीन पे इसको क्विकली साफ कर देते हैं वैक्स से। ये फील्ड में क्लीन करके लाते हैं फार्मर सीड। फील्ड में ये क्लीन कर रहा है जितना भी हो सकता है ताकि कम से कम सीड आए और वो जल्दी से जल्दी वो क्लीन करा के अपने वापस चला जाए। नेक्स्ट करो। ये डिफरेंट मशीन्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। 5 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं सीड क्लीनिंग के। 5 डिफरेंट प्रोसेस। एक है जो सीड क्लीनिंग है। सीड क्लीनिंग से हम साइज ग्रेड करते हैं, एक साइज का सीड इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरा प्रोसेस है जिसमें हम वेट ग्रेड करते हैं, वेट वाइज ग्रेड करते हैं सीड। वो ग्रेविटी सेपरेटर है जो सेकंड मशीन है, नीचे से सेकंड। तीसरी मशीन है हमारे पास एस्पिरेटर्स, जो जिस सीड में अभी भी चैफ या लाइट सीड रह गया उसको एस्पिरेशन से हवा से उठा लेते हैं और हैवी सीड नीचे रह जाता है। चौथा प्रोसेस है बेल्ट ग्रेडर्स, जो ऊपर से सेकंड है। वो बेल्ट ग्रेडर है, बेल्ट करती है नीचे से ऊपर को और उसमें ऊपर से सीड डाला जाता है और जो सीड अच्छा होता है वो रोल करके नीचे आ जाता है। जो उसमें सैंड या पत्ते होते हैं वो बेल्ट के साथ ऊपर कर देते हैं। तो जैसे पटोनिया जैसा सीड इसी क्रॉप से इसी मशीन से साफ हो पाता है। इसमें कोई भी और चीज नहीं रहती, फिर ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद ऊपर तो हमारा प्लांट है, एक साइड से डालते हैं और वो 4 मशीनों में से होके वो साफ होके आ जाता है। नीचे जर्मिनेशन का प्रोसेस, नॉर्मल जर्मिनेटर्स हैं बट डिफरेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करने पड़ते हैं। हर एक क्रॉप का अपना टेम्परेचर है, अपना प्रोसेस है। कुछ जो क्रॉप्स है उसके सीड चिलिंग मांगती हैं, दैट इज चिलिंग फॉर 7 days। कुछ क्रॉप्स को K2O में ग्रो करना पड़ता है, कुछ क्रॉप्स को जिब्रेलिक एसिड वाले पानी में ग्रो करना पड़ता है। कुछ क्रॉप्स को एक ब्रॉडर नीचे रखते हैं, एक ब्रॉडर ऊपर रखते हैं, तब ग्रो करना पड़ता है। कुछ क्रॉप्स लाइट मांगती हैं टू ग्रो। तो सारे जैसा भी इसका का स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से हम उसकी जर्मिनेशन की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए 2-3 प्रोसेस दिख रहे हैं, एक पेपर टॉवल में है और एक बैटरी प्लेट में। तो ये जो भी सीड है
उसकी जो रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल दी है उसी हिसाब से उसको टेस्ट कर रहा है, सो दैट वो अच्छी तरह से उसी तरह से जर्मिनेट हो जैसे उसने बाहर जाके जर्मिनेट हो। ये मशीनें इन एक्शन है। ऊपर एक सीड ग्रेडर है, नेक्स्ट आपको दिख रहा है ग्रेविटी सेपरेटर, नीचे भी एक ग्रेविटी सेपरेटर है, ये स्मॉल ग्रेडर है जो इधर लेफ्ट साइड पे है। दैट इज अबाउट 40-44 कंटेनर्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एवरी ईयर। दूसरा है पैकेट्स बनाते हैं, ये जो पैकेट दिख रहे हैं आपको पिक्चर पैकेट्स, ये पैकेट्स बनाते हैं, इसकी भी मार्केट है बहुत बड़ी ओमान में और सऊदी अरेबिया में। ये पैकेट बनाते हैं और जो सेंटर में वो डिब्बे पड़े हुए हैं उसमें पैक करते हैं हर एक वैरायटी को, तो उसमें जब चला जाता है ये सीड। कुछ वैरायटी ऐसी होती है जैसे मैरीगोल्ड, वो टिन के डिब्बों में जाते हैं, टिन के डिब्बों में जाता है क्योंकि उसकी सीड की क्वांटिटी काफी है, तो टिन बैग में उसमें करते हैं। और ये हम जो बैग दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे सीरियल सीड की सेल है। सीरियल जैसे व्हीट पैडी भी हम लोग करते हैं, तो वो इस बड़े बैग में सेल करते हैं। इस तरह के पिक्चर पैकेट्स बनते हैं, डिफरेंट उस पर पिक्चर बनी होती है। हमारी वेबसाइट पे भी ये पिक्चर है, तो उस वेबसाइट की पिक्चर को देख के बायर हमसे, अगर पिक्चर अच्छी है तो आपका सीड बुरा भी चलता है, अगर आपकी पिक्चर बुरी है तो आपका अच्छा सीड भी नहीं मिलता। तो पिक्चर हैज टू बी परफेक्ट अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है। यहाँ से भी जो ये लोग आए हुए हैं या स्टूडेंट्स हैं, यू कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग योर ओन वेबसाइट। हम आपको होलसेल प्राइस पे पैकेट्स दे सकते हैं, इवन इन योर कंपनीज नेम वी कैन पैक फॉर यू। हम करते हैं अबाउट 10 लाख पैकेट करते हैं, कंपनियों के पास से भी करते हैं, उनके नाम से भी करते हैं। बट यू हैव टू हैव ए वेबसाइट, कमर्शियल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, उस पे आप ये सेल कर सकते हैं। हमारी इनकी पैकेट्स की ऑनलाइन सेल एवरी डे इज 20,000 to 50,000 पर डे ऑनलाइन। उसमें बहुत एक एडवांटेज है बहुत बड़ा, पैसे पहले देगा वो, आपका क्रेडिट कार्ड यूज करेगा अपना, पैसे पहले आपकी जेब में आ गए, उसके बाद आपने सीट भेजना, तो 20-50 हजार रुपये आपके पास रोज आ रहा है, और ये ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। हम लोग कोविड में सोचते थे कि कोविड है तो इसलिए लोग खरीद रहे हैं ऑनलाइन, कोविड के बाद एवरी ईयर आल्सो इट इज इंक्रीजिंग बाय 20%. So if somebody wants to go for this type of business, you have to make just one e-commerce website, packet we can supply you, and you can start your own business. And this can be a part-time business as well. तो आप जॉब भी करो और पार्ट टाइम ये भी काम कर सकते हो, एंड स्लोली इसमें भी काफी काम करना पड़ता है। यू हैव टू प्रमोट योर वेबसाइट, you have to have some kind of gifts, some kind of things in there, you have to put in those as well. मगर काम करना कोई बुरा नहीं अगर पैसा होता, तो it is a good work to do. Next. ये हमारा एक्सपोर्ट की जैसे शिपमेंट जाती हैं वो है, इसमें हमने ये बैग्स पैक करे 1 मीटर हाई, इनको हमने अब कंटेनर में लोड कर देना है। नेक्स्ट, ये सारा सीट पड़ा हुआ है, कुछ बॉक्सेस में है, कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, मल्टी स्टोरी रैक्स है जिसमें हम सीट को ग्रेड करके रख लेते हैं। When the container comes, इस रैक से उठा के उसमें पैक हो जाता है। ये दोनों मेरे सामने है, ये पैकेट्स हैं जो हम लोग सप्लाई करते हैं। हम ये भी करते हैं, प्लस हम लोग इंपोर्ट करते हैं पैनम का सीट, पैन अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी शिकागो, तो उसके ही लोग आए हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, उसके प्रेसिडेंट आए हुए थे परसों ऑन 31st। तो वो लोग खड़े हुए हैं, वो लोग अपने सीड को असेस कर रहे हैं कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज है, हम लोग क्या उनके लिए सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्स्ट यू हैव टू हैव दीज थिंग्स, देन
other possibilities of work comes your way. पहले आपको एक अच्छा सीड पैक करके देना पड़ेगा. नेक्स्ट, ये जो सीरियल सीड है वो इस तरह से प्रोसेसिंग होता है. अच्छा, प्रोसीजर क्या है सीड एक्सपोर्ट का? पहले सीड की प्योरिटी एंड जर्मिनेशन टेस्ट होती है, फिर उसको बाद उसको बैग्स में, बॉक्सेस में, कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक होता है. फिर उसके बाद उसकी इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट जनरेट होती है. फिर उसके बाद प्लांट क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन स्टेशंस हैं हर एक स्टेट में, वो आपका सैंपल लेने आते हैं. वो सैंपल ड्रा करते हैं. इन 10 डेज तो आपको रिपोर्ट देते हैं कि इसमें कोई डिजीज, इसमें कोई चैफ, इसमें कोई इंसेक्ट. तो ये काम जो एक्सपोर्ट का है ये क्रेडिट का काम है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे. एट वन टाइम 40 करोड़ का बीज आपका बाहर गया और आपके पास कोई का पैसा नहीं, कोई एलसी नहीं, बहुत बड़ा डील आ गया इसे. और आपको नॉन बंदे भी चाहिए. अगर आपके वहाँ पे जाकर बीज फेल हो गया तो गए. तो आपको इंश्योर करना पड़ता है 100% मीन्स 100% कि आपका सीट पास होगा वहाँ पर. सो फिर उसके बाद पेमेंट रिलीज होगा. He was our first buyer on the right side. Frank was our first buyer. He is no more, died of cancer. He was our first buyer. ये हमारे दूसरे बायर्स हैं जो जनरली हर एक साल हमारे पास आते हैं. ये भी बायर्स ही हैं, फार्मर्स को विजिट कर रहे हैं. This is on 31st. Miss N is the president of पैन अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स. ये हमारा ग्रीन हाउस है जहाँ पे हम सीडलिंग ग्रो करते हैं, उसको ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं. $37 बिलियन की कंपनी है पैन, ह्यूज कंपनी. एट वन टाइम इनके शिकागो ऑफिस में 2000 लोग ऑन डेस्क होते हैं, 2000 पीपल ऑन डेस्क. तो इतनी बड़ी कंपनी है. ये अल्सवीर है जहाँ पे अगर आपको कभी हॉलैंड जाने का मौका मिले तो इस जगह को देखना मत भूलिएगा. ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है. फ्लावर के जैसे रैक्स बने हुए, जैसे ये बॉक्सेस हैं, ये आपके सामने आते हैं और आप वहाँ पे बैठे हैं अपने कंप्यूटर के साथ. आप इसकी बिडिंग करते हैं कि मैंने $10 की खरीद ली है, कोई कहता है 20 की खरीद ली. एक क्लॉक है, क्लॉक मैंने दिखाया नहीं इसमें, वो क्लॉक चलता रहता है कि कितने कितने की हो गए. जिसका हाईएस्ट बिड है वो बॉक्स